Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss SQL Select statement for class 12th IT students from the unit database concepts. You must have seen in the sample paper that most of the questions which are asked from the queries are from select statement. So you have to display a particular record or attribute based on some condition. So we are going to discuss select statement in this video, and we are also going to discuss where clause, in which case we use where clause, and why we use and, or, and like keyword, in which cases these keywords are used. So we are going to start with the very basic of SQL select statement. So let's start. First of all, what is SQL select statement? It is a statement which fetch data from database tables. It means whatever tables are in the database, it fetches data from it, which returns data in the form of result table. For example, you want to fetch the name of the students from the student table, so it is going to show you the name of the students in the form of table only. Like column name will be student table. Let's assume कि वहाँ पे जो column name है that is student's name, and then it is going to show you the name of students in the form of table only, like A, B, C, then D, E, F. So this kind of output you get as a result, and it is also called result set. Now what is the basic syntax for this query, that is select query? We first write select keyword, then we write name of columns which we want to fetch, which we want to display. For example, I want to display name column, then I write name. In the same way, let's assume there is age, so I'll write age. So first I am telling you syntax, then we will see the example also. So what is the syntax? Column 1, then in the same way column 2, then column n. You can mention any number of columns. After that we write from, then table name, and then semicolon. So in this way we just write the basic starting level of select queries. How we use it practically, let's see. So the first question is display roll number and name of all students. So what we have to do, we have to just display this roll number and name of our students. So name comprises first name as well as last name. So here what we will do, we will write the query. तो हमें display करना है, we have to fetch the data from this table. So we will write select, then column name. अभी हमने syntax देखा था कि select के बाद क्या आता है, column 1, column 2, जितने भी columns हैं you have to mention them. So we will write here roll number. तो ये जो कॉलम नेम है ये सेम यहाँ से जो कॉलम नेम है वही आपको यहाँ पर लिखने हैं. देन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, it should be first n. First n comma last n. Then we have written all the field names or column names. उसके बाद आता है from keyword, then table name. Table name is student, so we will write student. So this is the query to display particular fields from the table. तो आप ऐसे करके query लिख सकते हैं. Now second case is if we want to display all the columns of the table. अगर हमें सारे columns display करने हैं table के, then what we do, display all columns. All columns और columns को हम attribute भी बोलते हैं. तो all columns और attribute कुछ भी आता है अगर क्वेश्चन में of the table student, then you have to mention instead of writing all the columns. एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या करोगे कि आप सारे कॉलम के नेम लिखोगे, सेलेक्ट रोल नंबर फर्स्ट एन लास्ट एन, देन एज कॉमा जेन कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट. तो इसका एक शॉर्टकट भी है. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट सेलेक्ट, then you will use this symbol that is asterisk. Asterisk means all columns will be selected, all columns will be fetched, and then you have to just write from student.
इस केस में क्या हो रहा है कि सारे टपल्स आपके प्रिंट हो जाएंगे व्हेन आई विल राइट दिस स्टेटमेंट। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये पूरी टेबल आपकी आउटपुट आ जाएगी, सारे टपल्स सारे फील्ड्स आपके इंक्लूडेड होंगे। तो इसका आउटपुट बिल्कुल ये सेम टेबल आएगी। और इसका आउटपुट कैसे आएगा, आपके ये 3 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा। ये जो स्टार्टिंग के 3 कॉलम है ये आपका आउटपुट आएगा इस फर्स्ट क्वेरी का। नाउ वी विल सी द थर्ड केस, दैट इज कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टपल चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 105 रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल्स देखनी है। सो हेयर इज़ अ कंडीशन दैट रोल नंबर शुड बी 105। ऐसे ही अगर हमें कोई कंडीशन पुट करनी होती है देन वी यूज़ वेयर क्लॉज। सो नाउ लेट्स सी वेयर क्लॉज। So where clause is used to specify condition while fetching data from single table or multiple tables. तो हम where के यूज से किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा फैच कर सकते हैं एक टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल से, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फैचिंग डेटा। तो आज तो हम सिर्फ एक टेबल पे ही बेस्ड क्वेरीज देखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू join the tables, we are going to use multiple tables और हम ग्रुप बाय ऑर्डर बाय भी डिस्कस करेंगे और भी जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हुए हैं, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो बात करते हैं अब वेयर क्लॉज के सिंटेक्स की। सिंटेक्स होता है सेम, आप सेलेक्ट लिखेंगे, then you will write columns or you can write star अगर आपको सारे columns select करने हैं, then from table name, after writing this you will mention the condition using where clause. You will write where and then condition. This where clause can be used with other queries also like delete or update, which we will discuss in coming videos. तो delete और update भी queries होती हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसके साथ भी ये where condition होती है। अगर हमें एक particular record delete करना है या update करना है based on the condition, तो भी आप वहाँ पे where clause यूज़ करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ select query के साथ यूज़ करेंगे। So you should know the syntax, आपको ये syntax learn होना चाहिए कि हम select query के साथ पहले पूरा कंप्लीट कॉलम नेम, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम और उसके बाद लास्ट में आपकी कंडीशन आती है। तब हम देखते हैं कि कैसे कंडीशन मेंशन की जाती है। जो कंडीशन होती है वेयर क्लॉज की, उसमें आपके ऑपरेटर यूज़ हो सकते हैं लाइक लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे आपके ऑपरेटर यूज़ हो सकते हैं, एंड और। सो कंडीशन हम इन ऑपरेटर्स के हेल्प से फॉर्म करते हैं। For example, if I say I want to see the marks detail of the student whose roll number is 105, so I have to mention the condition that roll number जो भी आपका कॉलम है जिस पे कंडीशन मेंशन हुई है equals to 105। तो अगर ये इंटीजर होता है तब तो आप सिंपल नंबर मेंशन करते हैं, बट अगर आपकी स्ट्रिंग है देन यू पुट इट इनसाइड द कोट्स। तो यहाँ पे अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया है इस कॉलम को तब तो आप सिर्फ 105 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा होता है कि जिसका फर्स्ट नेम मायना है उसका हमें डिटेल्स देखनी है, सो वी विल राइट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मायना। सो लेट्स सी इट विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। दिस इज द सेम टेबल। नाउ वी हैव टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स whose gender is F। तो यहाँ पे आप कंडीशन मेंशन हो गई, आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनका जेंडर F है। सो हाउ आई विल राइट द क्वेरी, हमें डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली आई राइट सेलेक्ट, देन ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। अगर पर्टिकुलर रोल नंबर या फर्स्ट नेम बोला होता तो हम वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लिखते हैं, पर यहाँ पे सारी डिटेल्स है, सो वी विल राइट स्टार, देन फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू मेंशन द क्लॉज, द कंडीशन, तो हम वेयर क्लॉज लिखेंगे वेयर। अब हमारी कंडीशन क्या है, जेंडर इज एफ। सो हम देखेंगे कि हमारा कॉलम नेम क्या है जो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज जेन। देन इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें जेंडर जो एफ है उसको मेंशन करना है, तो जेंडर इक्वल्स टू, और ये कैरेक्टर है सो आई शुड इंक्लूज इट इनसाइड द सिंगल कोड, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन। Now next question, display details of students whose age is less than 16। तो यहाँ पे भी सेम होगा, select asterisk from
स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे अब हमें कंडीशन दी है वेयर, कहाँ पे आपका एज कॉलम है, किस में मेंशन है, एज ही है कॉलम का नेम, सो वी विल राइट एज लेस देन 16, तो यहाँ पे हम लेस देन का साइन लगाएंगे एंड वी विल जस्ट राइट 16 और ये आपकी क्वेरी बन गई। तो अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत इजी क्वेरीज कर रहे हैं, देन वी विल डिस्कस लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ऑल्सो। सो ये क्वेरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसे हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। डिस्प्ले नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, तो हमें फीमेल स्टूडेंट्स कहाँ से पता चल रहा है, यूजिंग दिस जैन कॉलम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉलम जो है जैन है, बाय विच वी कैन सी फीमेल स्टूडेंट्स। तो इस कॉलम में कंडीशन लग रही है कि जो भी जेंडर है दैट शुड बी फीमेल, तो एक कंडीशन यहाँ लगी। हु लिव्स इन हल्द्वानी, तो अब सेकंड कंडीशन आ गई है, कहाँ पे पता चल रहा है कि कहाँ पे रहते हैं, यूजिंग दिस एड्रेस, और इस एड्रेस पे भी कंडीशन है कि HLD होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि हमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स लेनी है, वो भी हल्द्वानी में, यानी कि ऐसी स्टूडेंट्स का नेम हमें लिखना है जो फीमेल हो एज वेल एज हल्द्वानी में हो। तो उनका जो डिटेल्स आएगी उसमें यहाँ पे F आएगा और यहाँ पे भी एड्रेस जो है वो HLD होगा। इट मीन्स हमें ऐसे टपल्स लेने हैं जिनमें जो वैल्यू है जैन की वो F हो और एड्रेस की HLD हो, यानी कि दोनों कंडीशन मीट हो रही हो। तो जहाँ पे भी अगर ऐसा केस होता है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन दी है और वो कंडीशन सारी मीट होनी चाहिए, इन दैट केस वी यूज़ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इज़ यूज टू मेंशन मल्टीपल कंडीशंस एंड ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू विच आर सेपरेटेड बाय दिस एंड ऑपरेटर। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वी विल राइट सेलेक्ट, वी हैव टू जस्ट डिस्प्ले नेम दिस टाइम। तो नेम किससे डिस्प्ले होगा, फर्स्ट N कॉमा लास्ट N फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जैन इक्वल्स टू F, ये पहली कंडीशन हो गई। नाउ वी विल राइट एंड देन एड्रेस इक्वल्स टू HLD। तो इससे क्या होगा, आपकी कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे आउटपुट में। आपका आउटपुट जो है, पहला रिकॉर्ड ये आएगा आपका आउटपुट में, सेकंड जो फीमेल है और हल्द्वानी में है, दूसरा ये 107 वाला आएगा, एंड देन तो सिर्फ ये दो आएंगे। तो इसका आउटपुट देखते हैं कि इस क्वेरी का आउटपुट कैसा आएगा। इसमें आपके दो कॉलम्स डिस्प्ले हुए हैं, तो दो कॉलम्स बनेंगे एंड वी हैव सीन कि दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा एंड देन यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा रिया जोशी एंड देन सेकंड आ जाएगा आपका मोना जोशी। तो ये इस क्वेरी का आउटपुट होगा। तो आपको क्वेरी का आउटपुट भी फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चंस फाइंड द आउटपुट ऑफ द क्वेरी भी आए हुए हैं। So we should know syntax of the query as well as their output. Now let's see the next query. Display age of students who lives in HLD or BRL. So यहाँ पे और केस आ गया। इट मीन्स अभी तो क्या हो रहा था, जब दोनों ट्रू थी कंडीशन तभी आपका क्या हो रहा था, वो रिकॉर्ड फैच हो रहा था। बट इस केस में क्या होता है, और ऑपरेटर में क्या होता है कि आपका इनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए, ट्रू हो जाए, तो क्या होगा, आपका रिकॉर्ड फैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि हु लिव्स इन HLD, यानी कि HLD वाला रिकॉर्ड भी आएगा और जो BRL में रहते हैं उनका भी रिकॉर्ड आएगा। अगर इन केस यहाँ पे होता है कि हु लिव्स इन HLD और एज इज़ 16, तो देखिए HLD वाले भी आ जाते और इवन जो एज 16 वाले रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं। बट हमने यहाँ पे सेम कॉलम में मेंशन किया है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कभी भी ये जो एंड है वो सेम कॉलम में ऐसे स्पेसिफाई नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे हु लिव्स इन HLD एंड BRL, तो देखिए, क्योंकि एक हमने सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें ऐसा कुछ था कि ही लिव्स इन दिस एंड दिस ना। सो इस केस में तो एंड कभी यूज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे आपका रिकॉर्ड फैच होगा, इसमें तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा कि HLD में भी रहता हो और BRL में भी। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है।
सो यहाँ पे तो नो आउटपुट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका केस है अभी और, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सेलेक्ट, हमें एज डिस्प्ले करनी है, सो विल राइट सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट where who lives in हल्द्वानी, सॉरी HLD और BRL। तो ये कहाँ पे है कॉलम, एड्रेस, सो वी विल राइट एड्रेस equals to HLD, now it is a character, it is a string, so we will write or address equals to BRL. So this is the query और इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स चेक द आउटपुट ऑल्सो। सो HLD में एज है 17, सो यहाँ पे कॉलम का नेम हो जाएगा एज और आ जाएगा आपका आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो यहाँ पे हो जाएगा एज 17, देन अगेन 17, देन BRL का 16, HLD 15, देन BRL 17, देन HLD 16, 17, 15, ये सारे आ जाएंगे आपके 16, 17 एंड 15 इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब जब ये सारे आ रहे हैं तो देखिए, अगर हमें सिंपल चेक करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है HLD या BRL में रहते हैं जिनका एड्रेस कोड ये है, तो उनकी एज क्या है, कोई 16 का है, 17 का है, 15 का है, या सारे के सारे 17 वाले हैं, तो हमें उनकी एज चेक करनी है। सो नाउ यहाँ पे देखो सबकी अलग अलग एज आ रही है, हमें सिंपल देखना है कि उनकी 17 है या 16 है। हमें ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स चाहिए, यानी कि अलग अलग रिकॉर्ड्स। तो अगर इस बहुत सारे लोगों की 17 है तो बस एक 17 आ जाए, अगर इनमें से बहुत सारे लोगों की 16 है डुप्लीकेट रिकॉर्ड से, तो बस एक 16 आ जाए और एक 15 आ जाए। तो अगर हमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, देन व्हाट वी डू, वी सिंपली मेंशन हेयर वन की वर्ड दैट इज डिस्टिंक्ट। तो हम क्या लिखेंगे उस केस में, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अगर हमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड चाहिए, देन वी विल राइट सेलेक्ट, देन डिस्टिंक्ट, देन एज। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, 17, 16, 15। ये जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं ये आपके रिमूव हो जाएंगे। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी इफ़ यू आर गोइंग टू मेंशन डिस्टिंक्ट। आई थिंक इतना आपको अभी तक का क्लियर हुआ होगा। इन केस नहीं हुआ है कोई भी कंसेप्ट क्लियर, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो ऑन द रिमेनिंग टॉपिक्स। तो आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है, सो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो वंस अगेन दैट टॉपिक। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेरी, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद आर। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करना है जिनका नेम जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा हो, फर्स्ट नेम। सो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिंग है, उसमें हमें ये मैच करना है कि जो भी स्ट्रिंग्स इससे मैच कर रही हो, जो भी वैल्यूज़ इससे मैच कर रही हो कि आर से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे आपके उसके डिटेल्स आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके आउटपुट में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ लाइक कीवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेयर वी हैव टू मैच द स्ट्रिंग। और लाइक कीवर्ड से सिर्फ स्ट्रिंग मैच होती है, कभी भी इंटीजर मैच नहीं होता। सो लाइक और इसके साथ आपके दो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, एक होता है अंडरस्कोर, दूसरा होता है परसेंटेज साइन। तो ये अंडरस्कोर किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वन कैरेक्टर, इट इज़ यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर्स। अगर आपने ऐसे 2 अंडरस्कोर्स यूज़ किए हुए हैं लाइक के बाद, लिखा है लाइक 2 अंडरस्कोर, तो इसका मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जिसमें कि 2 कैरेक्टर्स हैं। कोई भी 2 अननोन कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें 2 होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट एन लाइक, देन आई पुट दीज 2 अंडरस्कोर्स, तो ये मैच करेगा कि ऐसे नेम्स, ऐसे फर्स्ट नेम्स जिनमें 2 कैरेक्टर हो। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी फर्स्ट नेम नहीं है, सो नो रिकॉर्ड विल बी फेच्ड। अगर मैं यहाँ पे 3 अंडरस्कोर लगाती हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड्स लेगा जिनमें भी 3 कैरेक्टर्स हों फर्स्ट नेम में। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप देख सकते हैं सिर्फ एक जय है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं।
तो दिस रिकॉर्ड विल बी फेच्ड एज एन आउटपुट। अगर मैं 4 करती हूँ तो क्या होगा, 4 कैरेक्टर्स। तो 4 वाले बहुत सारे हैं, तो सारे जो भी होंगे जिनमें 4 कैरेक्टर्स होंगे फर्स्ट नेम में, ऑल विल बी फेच्ड। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ आई वांट कि ऐसे नेम्स, ऐसी डिटेल्स आ जाए स्टूडेंट्स की जिनका फर्स्ट नेम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद उसमें 3 कैरेक्टर्स और हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नेम ए से स्टार्ट हो रहा है और उनमें बाकी 3 कैरेक्टर्स और हैं, यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। और अगर मैं बोलूँ कि नेम ए से एंड होना चाहिए और स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे करके कंडीशन मेंशन करते हैं। नाउ परसेंटेज, इट रिप्लेसेस 0 और मोर कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये क्वेरी देखी है जिसमें लिखा है स्टार्ट्स विद आर, हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद आर। तो हमें ये पता है कि नेम आर से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे 0 कैरेक्टर है या फिर ज़्यादा कैरेक्टर भी हैं, तो उसके लिए हम परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे। सो हाउ वी विल राइट क्वेरी फॉर दिस, सेलेक्ट display details, so all the details should be shown, so we will write select star from student, then इसमें भी आपका क्लॉज यूज होगा वेयर क्लॉज, देन जो भी आपका कॉलम है, फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद आर, तो आपका जो कॉलम है दैट इज फर्स्ट एन, सो विल राइट फर्स्ट एन, देन लाइक कीवर्ड। तो जब भी हमें ऐसे स्ट्रिंग मैच करनी है दैट स्टार्ट्स विद आर और दैट कॉलम इज हैविंग 5 कैरेक्टर्स, तो उस केस में हम लाइक कीवर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज़ लाइक कीवर्ड। ये कभी भी इक्वल्स टू नहीं आएगा। अगर इन केस आपको ऐसे दिया है ऑप्शंस में फर्स्ट नेम इक्वल्स टू 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे है एंड्स विद आर स्टार्ट्स विद आर, तो अगर ऐसे लिखा है फर्स्ट नेम इक्वल्स टू आर परसेंट, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा रॉन्ग होगा। इसमें कभी भी इक्वल्स टू साइन यूज़ नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन में अगर इक्वल्स टू है इंस्टेड ऑफ लाइक, तो वो ऑप्शंस जो होंगे वो रॉन्ग होंगे। लाइक वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, लाइक देन आर परसेंटेज। तो यहाँ पे तो स्टार्ट्स विद आर है, तब हमने आर से स्टार्ट किया और उसके पीछे कुछ भी स्ट्रिंग हो, इट डज़ नॉट मैटर। तो इस केस में कौन से आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ये वाला आएगा 101 वाला, और जो भी आर से स्टार्ट हो रहा है ये 108, एंड देन लास्ट वाला 112। अगर ये हो एंड्स विद आर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका एंड्स विद आर, तो स्टार्टिंग में कुछ भी होगा, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है 0 और मोर कैरेक्टर्स का, बट एंड में आपका आर होना चाहिए। सो यू विल राइट परसेंटेज एंड देन आर। अगर क्वेश्चन होगा जैसे आपने सैम्पल पेपर में भी देखा था कि क्वेश्चन था लाइक नेम स्टार्ट्स विद एस एंड हैविंग एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, राइट। सो व्हाट वी विल डू, एस देन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो एटलीस्ट लगा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज साइन तो आपका 0 और मोर कैरेक्टर्स दिखाता है, 0 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट नेम स्टार्टिंग विद एस एंड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो एक कैरेक्टर तो ये एस हमने कर ही दिया जो एस से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद हमें 5 कैरेक्टर्स और बनाने, 1 2 3 4 5, और उसके बाद भी और हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स कह रहे हैं, तो उसके बाद हमें परसेंटेज साइन यहाँ पे पुट कर देना है एंड देन सेमी कोलन। तो इस तरीके के कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं रिलेटेड टू दिस। सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो, जब इससे रिलेटेड हम MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. In next video, we are going to discuss remaining topics of select query, as well as I'll create one more video जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे, स्पेशली विद दिस लाइक कीवर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है थ्रू दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and all the best for the preparation of your exam, and thank you for watching this video.